آج ہم نکالیں گے خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 10 باب. لوکا طبیب کی انجیل اس کا 10 باب 38 آیت سے لے کے 42 آیات تک. لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10 باب 38 آیت سے لے کے 42 آیات تک. بڑی توجہ کے ساتھ خدا کا کلام سنیں. پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی. وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی. لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی. بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آئے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے. خداوند نے جواب دیا، میں اس سے کہا، مارتھا مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ چاہے گا. خدا ان کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت. آج ہمارا ٹاپک ہے دھیان خدا کی طرف. اپنا فوکس خدا کی طرف رکھنا، اپنا دھیان خدا کی طرف رکھنا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 2 عورتوں کا ذکر ہے، ایک مارتھا اور ایک مریم. یہ دونوں بہنیں آپ سب جانتے ہیں کہ لازر کی بہنوں کا ذکر ہے، اور یہ دونوں بہنیں یہاں پر بڑی کشمکش میں نظر آ رہی ہیں. لیکن خدا کو دعوت دینے والی جو بہن ہے وہ مارتھا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا. انویٹیشن دیتی ہے مارتھا خدا کو کہ میرے گھر میں آؤ. لیکن آگے سٹوری تھوڑی بدلی ہوئی نظر آتی ہے کہ بلانے والی، دعوت دینے والی مارتھا ہے. لیکن جیسے ہی یسوع اس کے گھر میں آتے ہیں تو جیسے ہمارے گھر میں کوئی بڑی پرسنالٹی آ جائے تو ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس کے لیے یہ بھی اہتمام ہو جائے، اس کے لیے کھانا بھی بن جائے. جو ہماری حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہم کوئی بھی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مہمان کی اچھی خاطر تواضع ہو. تو یہاں پر مارتھا کو بھی تھوڑی سی ٹینشن ہے. مارتھا دعوت دیتی ہے اور ٹینشن میں آ جاتی ہے، فکر میں آ جاتی ہے. جب تک مارتھا کا دھیان انویٹیشن تک تھا تو وہ خدا کو سامنے دیکھتی رہی. جب اس کا دھیان خدمت کی طرف آ گیا تو اس نے اپنی طرف دیکھنا شروع کیا. جب اس کا دھیان یسوع کی طرف تھا تو مارتھا خوش نظر آ رہی ہے. لیکن جب اس کا دھیان خدا سے ہٹ گیا، اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا شروع کر دیا. اس نے اپنے آپ کو سامنے لانا شروع کیا کہ میں خدا کے لیے یہ کروں، میں یہ پکاؤں، میں یہ کروں، میں کیسے کروں گی، میرے سے کیسے ہوگا، ہو سکتا ہے میں یہ کر پاؤں، ہو سکتا ہے میں نہ کر پاؤں. جیسے ہی مارتھا نے یہ فکر لی، جیسے اس نے سوچنا شروع کیا، جیسے ہی اس کے دل میں یہ پریشانی آ گئی تو اس نے خدا کو پیچھے چھوڑ دیا. جب تک دعوت کی بات ہے تو
मार्था कलाम में खुश नजर आ रही है। उसने यीशु को इनविटेशन दिया, उसने खुदा को अपने घर बुलाया। इसका मतलब है कि मार्था खुश थी कि यीशु मेरे घर में आए, लेकिन तब तक उसका ध्यान यीशु की तरफ था। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान खाने पीने, दुनियादारी और उस परेशानी की तरफ आया तो उसका ध्यान यीशु से हट गया। और जब हट गया तो क्या हो गया? वो घबरा गई। खुदा का कलाम कहता है कि वो खिदमत करते करते घबरा गई, टेंशन में आ गई, परेशानी में आ गई और सोचने लगी। और उसके दिल में रंजिश भी अपनी बहन के लिए आ गई, गुस्सा भी आ गया, हसद भी आया। और उसके दिल में आया कि मरियम जो है वो यीशु के कदमों में बैठकर कलाम सुन रही थी, बातें सुन रही थी। यहाँ पर बड़ी गौरतलब बात है कि जब तक मार्था यीशु के इंतजार में थी तो वो खुश थी, लेकिन जैसे ही यीशु उसके घर में आ गया तो वो खिदमत से घबरा गई, वो परेशान हो गई। उसने दुनिया की फिक्रें ले ली, उसने परेशानियां ले ली। और जैसे ही उसने फिक्रें ले ली तो उसका यीशु से ध्यान हट गया और वो घबरा गई, ना खुश हो गई, परेशान हो गई, समझ से बाहर हो गई। और उसको कुछ भी घबराहट में समझ नहीं आ रहा और वो घबराती हुई अपनी बहन पर गुस्सा होती है और यीशु के पास जाकर कहती है कि यीशु तू ही इसको कुछ समझा कि ये मैं कब से मेरी खिदमत में अकेली लगी हूँ और ये कोई काम नहीं मेरे साथ करवा। जहां पर हमारा ध्यान खुदा से हट जाता है वहां पर दुनियादारी की फिक्रें हमें दबा लेती है। जब तक हमारा ध्यान खुदा की तरफ रहता है तो हम खुश रहते हैं। हम हर हाल में, चाहे मुश्किलात में हो, परेशानियों में हो, दुखों में हो, हमें एक भरोसा होता है, हमारा एक ईमान होता है, हमें एक आस होती है कि मेरे साथ जिंदा खुदा है, मैं इन बातों से एक दिन जरूर निकल जाऊंगी। जब तक हमारा ध्यान खुदा की तरफ रहता है हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही ध्यान बढ़ जाता है, दुनियादारी की फिक्रों में आ जाता है, परेशानियों में आ जाता है, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं तो हमारा ध्यान यीशु से हट जाता है। और जब ध्यान हट जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। यहाँ पर मार्था की जिंदगी का भी ऐसा ही हाल है। दावत देने वाली वो है, यीशु को बुलाने वाली वो है, खुश होने वाली वो है, लेकिन आगे हालात बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे कि वो यीशु की खिदमत से घबरा गई। यहाँ पर मतलब ये जाहिर हो रहा है कि वो दुनिया की परेशानियों में आ गई, वो दुनिया की मुश्किलात को देखना शुरू हो गई, उसके आगे मुश्किलात खड़ी हो गई और उसका ध्यान यीशु से हट गया, उस खुशी से हट गया, उस इत्मीनान से हट गया, उस सुकून से हट गया और वो हट कर घबरा गई और परेशानी में आ गई। लेकिन दूसरी बहन का हाल देखे तो खुदा का कलाम कह रहा है कि मरियम यीशु के कदमों में बैठी उसका कलाम सुन रही है। जो खुदा के कदमों में रहता है, जो चाहता है कि मेरी जिंदगी में सुकून रहे, तो उसके लिए यह जरूरी है कि वो खुदा के कदमों में रहे। जो चाहता है कि मेरी जिंदगी में खुशियां रहे, इत्मीनान रहे, इन हालात में जब हालात बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं, पेचीदा हालात में भी अगर कोई सुकून चाहता है तो एक ही जरिया है कि वो यीशु के कदमों में रहे। और मरियम यीशु के कदमों में, और यहाँ लिखा है कि वो सुकून से बैठी। क्यों सुकून है? क्योंकि यीशु के कदमों में सुकून मिलता है, यीशु के कदमों में खुशी मिलती है, यीशु के कदमों में इत्मीनान मिलता है, यीशु के पास आकर हमें तसल्ली मिलती है। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि अगर हम 2 घंटे यहाँ पर रहते हैं, हम इस रसूली के अंदर रहते हैं, तो हमारा ध्यान दुनिया से हट जाता है, तो हम बड़े सुकून के साथ बैठकर वक्त गुजारते हैं।
लेकिन जैसे ही घर जाते हैं फिर वही दुनिया की परेशानियां, फिर वही तरदद, फिर वही घबराहट, फिर वही परेशानी। ये कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन करेगा, कैसे होगा मेरी जिंदगी में। लेकिन कहां सुकून है? यीशु के कदमों में। जब तक मरियम यीशु के कदमों में रहती है वो सुकून से रहती है, लेकिन मार्था यीशु के कदमों से दूर है और वो बदसुकूनी में है, घबराहट में है, परेशानी में है। उसको सुकून नहीं मिल रहा, उसको तसल्ली नहीं मिल रही, बल्कि उल्टा वो गुस्से में आ जाती है, रंजिश में आ जाती है, लड़ाई झगड़े में आ जाती है। ये बातें उसी वक्त पैदा होती है जब हम खुदा के कदमों से बाहर हैं, जब हम उसकी हजूरी से बाहर रहते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है जहां से हमें सुकून मिल सकता है, और वो खुदा के कदम है, वो खुदा की हजूरी है, वो खुदा की इबादत है, वो खुदा के साथ जुड़े रहें। जहां तक मार्था का ध्यान खुदा के साथ रहा वो भी खुश थी, लेकिन जैसे उसका ध्यान खुदा से हट गया वो दुनिया की परेशानियों में आ गया। अगर हम गौर करें तो इसी तरह एक हवाला उसमें आप सबने पढ़ा होगा कि जब यीशु पानी पर चलकर आ रहा था तो उसके शागिर्दों में एक यानी कि घबराहट थी कि हो सकता है ये रात के टाइम में भूत है, लेकिन पतरस के अंदर ये बात जागी कि ये यीशु हो सकता है। और जब उसने आवाज दी तो उसने कहा यीशु मैं भी पानी पर चलकर आ सकता हूं? तो यीशु ने कहा कि आ जाओ। और जैसे ही पतरस ने चलना शुरू किया, जब तक तो पतरस का ध्यान खुदा की तरफ रहा वो पानी पर सही चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान उस आंधी, तूफान, हवा की तरफ गया तो वो घबराना शुरू हो गया, वो डूबना शुरू हो गया, वो डरना शुरू हो गया। जब तक हमारा ध्यान खुदा की तरफ रहता है, चाहे कितने भी पानी आ जाए, चाहे कितने भी समुद्र आ जाए, कितने भी तूफान आ जाए, कितनी भी बड़ी बीमारियां आ जाए, कितने भी बड़े दुख आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबतें आ जाए, जब हमारा ध्यान खुदा की तरफ है तो हम उन मुसीबतों में से भी चलते जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम अपनी नजरें खुदा से हटाकर इंसानों की तरफ लगा लेंगे, दुनियादारी की तरफ लगा लेंगे, तो हम डूबना शुरू हो जाएंगे, हम उसी आंधियों तूफानों के अंदर उड़ना शुरू हो जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। बात है ध्यान की। जब तक हमारा ध्यान मसीह यीशु में रहता है तब तक हम महफूज रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान मसीह से हट जाता है हम डूबना शुरू हो जाते हैं, हम दुखों में आ जाते हैं, हम मुसीबतों में पड़ जाते हैं, हम परेशानियों में पड़ जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम कैसे निकले। बात यहाँ पर ध्यान की हुई। आज मैं जब कलाम तैयार कर रही थी तो मुझे भी अपनी एक जिंदगी की गवाही याद आई। बेशक जो लोग शुरू से मेरे साथ हैं वो तो जानते हैं, लेकिन बताने का ये मकसद है कि जब हम ध्यान खुदा की तरफ रखते हैं तो खुदा हमारे ध्यान से बढ़ के 7 गुना ध्यान रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये बंदा मेरा है। ये तकरीबन मेरे बेटे की गवाही है, आज से 8 साल पहले की। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो हमारे हालात काफी फाइनेंशियली तौर पर हम कमजोर थे, बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। और ये खुदा का फजल है कि मैं इस उम्मीद पर थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसके लिए मेरे पास 6000 है, ये बहुत है। और जब मैं इसी उम्मीद पर थी तो मैं बड़ी खुश थी। और ये जरूर है कि मेरा ध्यान अपने खुदा की तरफ भी था कि खुदा ये वक्त आने वाला है तो हमारे पास इतने पैसे हैं, इसी के अंदर हमारा इंतजाम हो जाए तो बेहतर है। हर इंसान ये बात सोचता है, तो मैं भी यही दुआ करती थी। लेकिन जिस दिन खुदा ने ये वक्त लाना था, उस सुबह को, उसी सुबह को, सब जानते मास्टर रियाज को, हमारे बहनोई, वो आकर यहाँ पर 40,000 रुपये अमजद को दे के गए कि ये अपने पास रखो, अल्लाह अपने घर भी रख सकता था, हालांकि वो किसी और को भी दे सकता था, लेकिन वो इसके पास आया
اس نے صبح 7 بجے ہمارا دروازہ نوک کیا, کہتا یہ 40,000 میرا رکھ لو اور شام کو یا کل مجھے ضرورت پڑے گی تو میں لے لوں گا. اور خدا کا کرنا دیکھیں کہ جیسے وہ دے کر گیا, ہم 9 بجے ہاسپٹل میں گئے ہیں تو ہمارے پاس اپنا 6,000 تھا. آج سے 8 سال پہلے نارمل ڈیلیوری اتنے پیسوں میں ہو جاتی تھی تو ہم خوش تھے کہ ہمارے پاس ہمارا خرچہ میں کوئی پریشانی نہیں. لیکن جیسے ہم ہاسپٹل میں گئے تو جو ہم نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا. تو شام کو جب ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا تو ہمیں سب سے پہلے یہی بات نظر آئی کہ ہمارے پاس تو پرائیویٹ ڈاکٹر کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس تو یہی 6,000 ہے, اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں. اور جب وہ خرچہ بتا رہے تھے 25-30,000 کا تو ہمیں بڑی ٹینشن ہوئی. تو میرے ہسبینڈ نے ایک ہی بات کہی کہ جو گھر پہ پیسے پڑے ہیں وہ میں لے آتا ہوں, آپ آپریشن شروع کرو. کیونکہ انہوں نے کہا بچے کی دھڑکن بند ہو رہی ہے, آپ کے پہلے بھی بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ رسک نہیں لو. اور ہمارے لیے واقعہ یہ بہت قیمتی چیز تھی کہ ہمیں 7-8 سال کے بعد یہ مل رہی تھی تو ہمارے لیے بہت قیمتی تھا. تو انہوں نے بولا کہ اس سے پہلے کہ بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے آپ آپریشن کروا لو. تو ہم نے وہی 40,000 اٹھایا, ہاسپٹل لے گئے اور وہاں پر جب آپریشن ہو گیا تب سوچ میں پڑ گئی کہ یہ 40 آئے گا کہاں سے, کیونکہ استعمال تو کر لیا. ابھی تو مجھے یعنی کہ میں آپ کے سامنے خوش اس لیے ہو رہی ہوں کہ خدا نے ہمیں پتا دی, لیکن یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ جب استعمال کر لیا تو ہمارے حواس اڑ گئی. ہم سوچنے لگے کہ اب 40 آئے گا کہاں سے. ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 10 کہاں سے پورا کریں, 40 تو بہت دور کی بات ہے. لیکن جیسے ہی میری امی کا فون آیا تو وہ کہنے لگی کہ ہم جو ہے یہ لے کے آئیں گے. ہم نے بولا آپ کچھ بھی نہ لاؤ, ہم نے یہ قرضہ لیا, ہمارا قرضہ اتار. تو جب میری امی آئی تو وہ صبح پیسے لے کے آئی, ہم نے ان کے پیسے عزت کے ساتھ ان کو واپس دلائے, ان کو واپس کیے. ان کو یہ پتا بھی نہیں چلا کہ پیسے کہاں سے آئے, کیسے آپریشن ہوا, کیسے خدا نے سارا انتظام کیا. بات یہ ہے کہ جب سے پریگننسی ہوئی تھی میں نے صرف اپنے خدا کی اور دیکھا. صرف مجھے بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں سے بھی یہ بیٹا مل جاتا ہے, یہاں سے بھی یہ ہو جاتا ہے, وہاں سے بھی یہ ہو جاتا ہے, پہلے بھی تمہارے بچے مرے ہیں تو تم یہ کرو وہ کرو. لیکن میں نے صرف اور صرف اپنے خدا کو دیکھا تھا. میں نے یہی بولتی تھی کہ جس کو میں دیکھتی ہوں وہ سب سے بڑا ہے, اگر وہ دینا چاہے گا تو مجھے زندگی کے ساتھ دے گا. اور میں نے جب خدا سے شروع دن سے یہ مانگنا شروع کیا تو میرا ایمان تھا, اور خدا نے اینڈ تک کبھی بھی کسی جگہ پر مشکلات میں مجھے نہیں چھوڑا. خدا نے پل پل میں میری مدد کی. اور دیکھیے خدا نے کیسے, جیسے کسی کو فرشتہ بنا کے خدا نے ہماری بر وقت مدد کی, بر وقت ہماری ضرورت کو پورا کیا, اور خدا نے بر وقت ہمارا قرضہ بھی اتارا. ہم فری بھی ہوئے, آزاد بھی ہوئے, اور ہم نے اپنی خوشی کو بھی سیلیبریٹ کیا کہ خدا نے ہماری ضرورت کو پورا کیا. آج خدا, جو لوگ خدا کو دیکھتے ہیں, جن کا دھیان خدا کی طرف ہے, وہ نہ ہوتے ہوئے میں سے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, وہ اس میں سے بھی کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر قدرت ہے کہ وہ کچھ کرے. لیکن کیا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ انسان کا دھیان جو ہے وہ خدا کی اور ہو. جب ہمارا دھیان خدا کی اور ہوگا تو مشکلات, چاہے سمندروں میں سے آپ گزرو, طوفانوں میں سے گزرو, آندھیوں میں سے گزرو, کہیں بھی گزرو, جس طرح اس نے پترس کا ہاتھ پکڑ لیا جب وہ ڈرنے لگا, گھبرانے لگا, ڈوبنے لگا, تو کیا یسوع نے چھوڑ دیا؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آج جو خدا کی طرف دیکھتے ہیں, خدا ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. چاہے کسی بھی زندگی کو آپ کے لیے کھڑا کر دے, چاہے کوئی بھی آپ کا مددگار بن جائے, کوئی بھی ہو جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے, یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو استعمال کرتا ہے. لیکن وہ آپ کو کسی بھی حالات میں نہیں چھوڑتا, چاہے آپ کسی بھی حالات. لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کا دھیان جو ہے وہ خدا کی طرف ہونا چاہیے. اگر آپ کا دھیان خدا کی طرف ہوگا تو سب کچھ آپ کے لیے ممکن ہے. اگر آپ کا دھیان خدا کی طرف نہیں ہے تو کچھ بھی ممکن نہیں. آج لوگ دونوں راستوں
देखते हैं, खुदा की तरफ भी देखते हैं। अगर किसी ने कह दिया ये काम वहां से भी हो सकता है तो वहां भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर मरियम ने सूंघ ढूंढा यीशु के कदमों में। यहाँ पर पतरस ने डूबते हुए सहारा लिया, यीशु का सहारा लिया। आज वो लोग जिनका ध्यान खुदा की तरफ है, जो खुदा को देखते हैं, वो किसी भी फिक्र और तरद्दुद में नहीं रहते। खुदा का कलाम एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है। मत्ती की इंजील निकाले मेरे साथ, 6 बाब, शायद 31 आयत इसमें लिखा हुआ है 6 बाब की। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। कितनों को समझ आए? क्या फिक्र तरद्दुद करके कुछ कर सकते हैं? क्या टेंशन लेके हम उससे कुछ कर सकते हैं? तो फिर कौन कर सकता है? सिर्फ यीशु ही है जो कर सकता है। तो क्यों ना हो कि उसकी हजूरी में, उसके कदमों में सुकून ढूंढे। क्यों ना हो उसके कलाम में आ जाए, इस पनाह के अंदर आ जाए। आज दुनिया के हालात देखें, कोई भी महफूज नहीं है। बाहर की हुकूमतों की तरफ देखो, अफरा तफरी है, लोग मर रहे हैं। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो उनको बचा सके, कोई भी ऐसी तरक्की नहीं है जो इस बात से उनको रोक सके, क्योंकि जब खुदा का हाथ ही किसी की तरफ बढ़ जाए तो उसे कौन रोक सकता है? आज अगर हम इन फिक्रों में रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। आज अपनी फिक्रें लेकर उसके कदमों में आ जाएं, उसके साथ उसकी ओर देखें, उसकी तरफ देखें। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा का कलाम कहता है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। अब वो कहता है कि अपनी फिक्र देकर तो देखो। हम देते भी नहीं है, सोचते भी रहते हैं कि ये कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा। वो कहता है जब तू देगा तो फिर ही मैं करूंगा। जब हम देते ही नहीं है, हम अपनी अक्ल से चलते हैं, अपनी सोचों से चलते हैं, अपनी ताकत से चलते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। जब दिया ही कुछ नहीं है तो लेने की आस कहां से? इसलिए अपनी फिक्रें खुदावंद को दे, अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगा ले। अगर इन हालात में आप सुकून चाहते हो तो खुदा के कदमों में आ जाओ, उसकी हजूरी में आ जाओ। इस कलाम के अंदर पनाह ले लो। ये आपको बचाएगा, ये आपको छुड़ाएगा। आने वाली मुश्किलात में ये आपका हाथ पकड़ेगा और आपको समुद्रों में से निकालेगा, तूफानों में से निकालेगा, आंधियों में से आपको बचा लेगा। सिर्फ एक वाहिद इसी कलाम के अंदर खुशी, इत्मीनान, सुकून, तसल्ली है। इसलिए जिस तरह मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया, आज आप भी इस अच्छे हिस्से को अपने से जुदा ना करो। जहां भी मौका मिलता है खुदा के कलाम की आवाज को सुनो, खुदा के साथ वक्त गुजारो, उसकी हजूरी में बैठो, अपने घर में मसबे बनाओ, खुदा के साथ बैठो। चाहे बच्चे आज छोटे हैं, प्रस्तश नहीं भी कर सकते, तब भी उनको लेके बैठो। खुदा का कलाम कहता है कि मैं माँ बाप से भी पूछूंगा कि तूने अपने औलाद को क्या सिखाया, तूने मेरे हुक्म कैसे बताए, तूने कैसे इनकी मेरे बारे में तरबियत की। तो खुदा कहता है कि ये बात मैं माँ बाप से पूछूं। इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी खुदा की तरफ देखें और अपनी औलाद के अंदर भी ये बीज बो दें कि वो भी सिर्फ और सिर्फ खुदा की ओर देखें। खुदा आज हम सबको इस कलाम के सिला से बड़ी बरकत दे। आमीन।